So here I'm opening the new model. Suppose here, let's say metric, and this is my new template. Okay, so let's say the brick, then gypsum wall board, or some that yellow color paint. These are the existing material available inside your Revit environment. Okay, this is not a loadable one. Okay, so if you go here into this modify, and here you will find the paint option. So if you click on this paint option, so here you will find uh, okay. So here if you filter out, like these are the default material available, but let's say I want to create my new own material. Let's say if you go into the paint category, here it's only one type of paint available, parking strip. It's showing into the yellow color. All right, so let's say I want to create a new paint color or the flooring of the tiles and everything, which are the materials you want to create. So for this, if you go to the manage tab, here you will find the materials. Okay, so need to open the materials, and this tab will open. So if you remember, whenever I'm assigning the material from my type properties, always this particular no dialog box pop-ups for the material browser. Okay, now once this material browser is open, here you will find the option, that one plus sign at the left hand bottom side, and here you have option to create a new material. Okay, so then I'll select and create a new material. So my new material name is a default new material. Okay, so whenever we are creating the new material, we need to give the proper name and some respective information on it. So let's say here I'm creating the flooring. Okay, so let's say I'll put the flooring for type 1, because I'm using suppose 2 or 3 types of different flooring in my building. Let's say for living room, I'm using a different flooring with respect to the tile. I'll Here I'll mention the flooring type 1, because I want to create 2 different types. Then after creating this flooring type, then you need to go to the appearance. So and some other required information is also available, like description, then comments. If you want to add some keywords, then you can add the keywords. Then who is a manufacturer for, let's say you're creating the flooring type or the any tile. So who is the manufacturer for the that particular tile, then a model, the cost, then website of the particular company who is making that particular tiles. So basically यहाँ पे जितना भी information आपको चाहिए, that you can fill, and finally you can put the annotation information. So keynote is nothing but in initial session I told you, whichever the information or the model we are creating inside the Revit environment, it has a specific unique ID or it has a specific standard code. Unique ID is something different and the standard code is something different. So that particular standard code is following under which category. Okay, let's say I'm creating the flooring type, so I am creating the suppose vinyl tile flooring or the any of the tile flooring. So I need to click over here and define the types. So let's say if I go here, so here you can see the keynote values. So that option will be where should I find, this is finishing will be flooring will be comes under the finishing. So I'll go for the division 9 finishes. Then under that, here I'll find the flooring option. Under that, which type of the flooring? Wood flooring, resilient flooring, carpet. So resilient, I'll find some here, somewhere here like vinyl composition tile flooring. So this is the standard core for the flooring, like 06 for the only tile flooring. Okay, 09650.A2. So that will I'll choose and I'll assign that. ओके, सो अभी ये क्यों मतलब लगता है दिस पर्टिकुलर कोड, अगर आप LOD 300 मॉडल कर रहे हो तो कोई आपको पूछेगा नहीं,
whether you have assigned this annotation information or the standard core or not, but जब हम लोग एज बिल्ड के लिए जाते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लाइक इनिशियली में भी बोला था, जितना आप लेवल ऑफ डिटेल बढ़ाओगे उतना आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इवन अभी यहाँ पे तो मैं ये मटेरियल दे रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ फैमिली बना रहा हूँ, ओके, न्यू फैमिली, सो ईच एंड एवरी फैमिली हैज अ ओमिनी क्लास नंबर। अब ओमिनी क्लास नंबर क्या है कि एक स्टैंडर्ड रहता है। सो अगर आपने डोर में देखा रहेगा तो आपको एक ओमिनी क्लास नंबर दिखता है। सो जब भी मैं कोई फैमिली क्रिएट करता हूँ तो वहाँ पे मुझे ओमिनी क्लास नंबर देना पड़ता है। और मैं कोई मटेरियल या फिर कोई नया टाइप बना रहा हूँ, लाइक वॉल का टाइप वगैरह, तो वहाँ पे उसका एक स्टैंडर्डाइज कोड रहता है। ओके, वॉल के लिए भी रहता है, जो भी आप मॉडल कर रहे हो, सो सबके लिए ये रहता है अपार्ट फ्रॉम द फैमिली, एंड फैमिली के लिए रहता है ओमिनी क्लास। सो अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखोगे, सो मटेरियल या फिर जो रेविट का एनोटेशन इन्फॉर्मेशन होता है, सो उसके लिए हम लोग स्टैंडर्डाइज कोड फॉर्मेट यूज करते हैं। और जो फैमिलीज रहते हैं, फैमिलीज इन सेंस डोर, विंडोज, या फिर जो भी एमईपी के बेसिकली, मैं हाईलाइट करके बोलूंगा कि एमईपी फैमिली, सो एमईपी फैमिली के लिए ओमिनी क्लास नंबर रहता है। सो वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है डिपेंड ऑन एलओडी। ओके, सो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालने के बाद अंडर द ग्राफिक्स यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो उसका शेडिंग पैटर्न कितना रखना है, सरफेस पैटर्न क्या रखना है, कट पैटर्न अगर कुछ आपको प्रोवाइड करना है, मतलब लेट्स से कि मैं इसमें कुछ कट देता हूँ या फिर सेक्शन मार्क करता हूँ, सो सेक्शन में वो उसका पैटर्न कैसे दिखना चाहिए, वेदर हैच पैटर्न चाहिए या फिर सॉलिड पैटर्न चाहिए, कॉन्क्रीट ब्रिक पैटर्न। सो अभी मैं लेट्स से कि फ्लोरिंग मटेरियल यूज कर रहा हूँ, सो फ्लोरिंग में भी विच टाइप ऑफ द फ्लोरिंग, लेट्स से अगर मेरे पास वुड फ्लोरिंग में यूज कर रहा हूँ, अगर मुझे करना है तो यहाँ पे देखो वुड के पैटर्न से, सो और मैं उसको कोई भी कटिंग सेक्शन एंगल में अगर देखता हूँ, सो उस पर्टिकुलर व्यू में मुझे ऐसा कुछ पैटर्न दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ पे आप ये पूरा इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। एंड बेसिकली ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है जनरली हम लोग फिल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, सरफेस पैटर्न अगर आपको रखना है, शेडिंग पैटर्न रखना है तो, बिकॉज यहाँ पे जो आरजीबी वैल्यू है ये आपका आरएफआई में मेंशन नहीं रहेगा। सो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जो होता है उसमें जो आरजीबी वैल्यू रहता है वो हम लोग अपेयरनेस में डालते हैं। ओके, अभी अपेयरनेस और ग्राफिक्स का बेसिकली क्या यूज है। सो ग्राफिक इज, जब हम लोग देखते हैं उसको इनटू द मॉडल, तो वहां पे जो एनालाइज आप करोगे, सो वो जो प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देंगी वो आपके ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज हो गए। एंड अपेयरनेस प्रॉपर्टीज मतलब जो हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं या फिर आफ्टर रेंडरिंग जो अपेयरनेस आना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज को, वो आपको अपेयरनेस में मिलेगा। सो यहाँ पे आपको जो आपके आरएफआई में आरजीबी वैल्यूज का कोड मिलता है, वो अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे इतने सारे आरजीबी है, एग्जैक्टली कहाँ पे डालना है, सो वो जो कोड होता है स्टैंडर्ड कलर का वो आपको अपेयरनेस में डालना पड़ता है यहाँ पे, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है वहाँ पे उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे डिफाइन होने के बाद अभी मैं तो डिफाइन कर रहा हूँ फ्लोरिंग टाइप, राइट। सो ये मुझे कहाँ पे मिलेगा, सो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज लाइब्रेरी होता है। सो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस द असेट। सो दिस पर्टिकुलर जो भी डिफॉल्ट मटेरियल मेरा आया था, रिप्लेस दिस असेट मतलब इसको मैं रिप्लेस करके मेरा न्यू मटेरियल यहाँ पे मैं डालूंगा। सो लेट से मैंने किया था फ्लोरिंग टाइप 1, सो मुझे यहाँ पे टाइल्स यूज करने हैं। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, देन यहाँ पे एक असेट ब्राउजर ओपन होगा। अंडर द असेट ब्राउजर हियर यू विल फाइंड द अपेयरनेस लाइब्रेरी। ओके, अंडर दिस इफ यू गो हियर यू विल फाइंड द फ्लोरिंग ऑप्शन। उसके अंदर है कारपेट फ्लोरिंग है, स्टोन फ्लोरिंग है, टाइल है, विनिल है, एंड वुड फ्लोरिंग है। सो लेट्स से मुझे टाइल्स यूज करना है, सो मैं टाइल्स के ऊपर क्लिक करूंगा। देखो इतने सारे टाइल्स टाइल के मेरे पास फ्लोरिंग्स अवेलेबल है। ओके, सो अभी इसमें से मुझे कौन सा करना है। ओके, लेट्स से कि टाइल में यूज कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्लू है, डायमंड रेड है, और सर्कुलर मोज़ेक टाइल्स है, ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है मुझे। ओके, या फिर टेराकॉट। सो लेट्स से कि अभी मैं डायमंड रेड वाला जो है ये मुझे इस पर्टिकुलर इसमें यूज करना है। सो यहाँ पे एक एरो है, सो सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो। ओके, ऑटोमेटिकली इट विल टेक यू इनटू दिस एनवायरनमेंट। सो नाउ यू कैन सी अब यहाँ पे मटेरियल चेंज हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है अपडेटिंग। सो अभी वो जो मटेरियल मेरे असेट ब्राउजर में था उसको मैंने यहाँ पे लोड किया है, एंड जो मैं न्यू मटेरियल बना रहा था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है अभी। ओके, देन अभी यहाँ पे आपको टाइल का साइज भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो जितना आपका रूम का लेट से आपका 10 बाय 10 का रूम है, सो 10 बाय 10 के रूम में आप 2 बाय 2 का टाइल लगा रहे हो, मतलब इंचेस में या फिर फुट में या फिर वट एवर इट इज जो भी आपका डायमेंशन है, सो वो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा।
सो अगर आपने इमेज के ऊपर क्लिक किया, सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टाइल डिफाइन का, साइज डिफाइनेशन का, ओके, पोजिशन। सो लेट से 2x2 का मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सो 2 फीट, 2 फीट बाय 2 फीट, ओके, एंड आई लॉक। सो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड शेप का मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। देन ये होने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे अगेन। बम्प इफेक्ट देना है तो आप उसको दे सकते हो। सेल्फ एल्यूमिनेशन है, मतलब वो कितना ब्राइटनेस आपका होना चाहिए उस पर्टिकुलर टेक्सचर मटेरियल का। सो बम्प मतलब क्या होता है कि आपने अगर वुड पैटर्न देखा रहेगा, सो स्पेसिफिकली ये जो पैटर्न होता है वो बम्प इफेक्ट, ये उड़ के पैटर्न में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि उड़ में देखो वो डॉट डॉट पैटर्न रहता है, या फिर ऐसे लाइक हेयर लाइन वर्क ऐसे कुछ पैटर्न रहता है। उसके उसकी इमेजेस में आपको दिखाता हूँ। बम्प इफेक्ट या फिर बम्प वुड टेक्सचर। ओके, सो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा बम्प इफेक्ट का। सो ऐसा कुछ पैटर्न अगर आपको वहाँ पे डिफाइन करना है, सो आप वो वहाँ पे वैल्यू देके डिफाइन कर सकते हो। सो अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूंगा, इमेज ये वाला है, कितना अमाउंट आपको उसको फेड करना है। सो इसका भी स्पेसिफिकली अगर आपको आपके रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में इसका वैल्यू अगर दिया रहेगा, सो जनरली उड पैटर्न में रहता है। ओके, डिपेंड्स होता है कि कहीं पे आपको मिलेगा कहीं पे नहीं मिलेगा। बट अगर जहाँ पे आपको दिया रहेगा, सो आइदर बम्प और टिन पैटर्न, सो आपको डिफाइन करना पड़ेगा एक वैल्यू देके। ओके, एंड टिंट इज नथिंग बट टू चेंज द ओरिजिनल कलर ऑफ योर मटेरियल। सो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर डिफाइनिंग ऑल दिस, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। नाउ that particular flooring type has been created. Okay, वो मेरा मटेरियल भी डिफाइन हो गया। सो मैं अगर मुझे देखना रहेगा, so I'll simply go to this materials again and see here it is visible, flooring type 1. Okay, so let's say I'll create a one small wall or small room over here like this. Okay, and here I will place that flooring. Okay, so अभी फ्लोरिंग में यहाँ पे देखो इन टू इन प्लेस तो कर रहा हूँ, बट इसमें वो लेयर है क्या? नहीं है। For that, मैं edit type में जाऊंगा. Again, I'll go here. Now I need to add the layer. So let's say I'm adding two layer. This is your 130. Assume it. So here, concrete layer. Sorry. Here, let's say I'm assuming the thickness of particular flooring is between 7 to 10. So here I will choose the. Okay, I have not categorized it. Flooring. Actually, so in between 150 layer we can keep intact and then increase the covering layer. वो भी possible है ना? यस यस, वो पॉसिबल है, बट जो भी स्टैंडर्ड रहेगा, बिकॉज अगर स्लैब थिकनेस जो स्टैंडर्ड रहता है, ओके, एज पर आईएस कोड, हाँ दैट विल बी बिटवीन 120 टू 150 है सपोज। सो हाँ इसके लिए मैंने उसको रिड्यूस किया, बिकॉज अभी यहाँ पे मैं एक ही लेयर में डिफाइन कर रहा हूँ मेरा कंक्रीट लेयर, मतलब एक्चुअल स्लैब लेवल एंड फ्लोरिंग टाइल। अभी इन बिटवीन दैट और एक लेयर रहता है, बिकॉज स्लैब के ऊपर यू कैन मतलब हम लोग डायरेक्टली फ्लोरिंग तो प्लेस नहीं करते। सो वहाँ नहीं पे कोई वो करते क्या? एक स्लरी टाइप मट सॉरी कंक्रीट और इसका मतलब सीमेंट और सैंड का मिक्सचर आता है जो हम लोग पहले प्लेस करते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग टाइल प्लेस करते हैं, राइट। सो उसका भी मुझे बीओक्यू कैलकुलेशन लगा, उसका भी मुझे मटेरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए मुझे और एक लेयर ऐड करना पड़ेगा, बट इट डिपेंड्स कि आपको कितना लेवल ऑफ डिटेल में जाना है। So ओके, all this detailing, does it uh, reflect in your report or? यस यस, विच एवर Oh, द
Okay, so that's why minor detailing is required in this Revit model, बराबर? Hello. Yes, ma'am. Yes, you're audible. Hello. So minor detailing in modeling is essential. That's how we can generate the report having all the material requirement and that thing, right? Yes. Okay. So basically जो भी सॉरी रेविट से जो भी आउटपुट निकलेगा ना इन टर्म्स ऑफ बीओक्यू, सो वो आप जो मैनुअल प्रोसेस से करते हो ना, लाइक एस्टिमेशन करते हैं लोग, इसको कितना मटेरियल लगा, वो एग्जैक्टली मैच भी होता है। इट्स अराउंड 95% मैच होता है। सो 5% प्लस माइनस, लाइक बिकॉज आपने जहाँ पे लेयर का अगर कोई लेयर डाला ही नहीं है तो उसका ऑब्वियसली वो मिस ही हो जाएगा। बट अगर आप प्रॉपरली विथ लेयरिंग, लेट से स्कर्टिंग का भी मुझे क्वांटिटी चाहिए, बिकॉज स्कर्टिंग इतना लेवल ऑफ डिटेल कोई जाएगा नहीं कि ओके यहाँ पे एक रूम के लिए कितना स्कर्टिंग ऑफ टाइल लग, कितना स्क्वायर मीटर टाइल लग रहा है, तो वो ऑब्वियसली हम लोग इतना जाएंगे नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली नंबर ऑफ टाइल्स निकाल के दे रहे हैं कि एक रूम है उसको कितना नंबर ऑफ टाइल लगेगा, कितना या फिर कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगता है। बट यस, अगर आपको स्कर्टिंग का भी टाइल डिफाइन करना है तो स्कर्टिंग का आपको, आप कितना उसको विड्थ दे रहे हो, कितना हाइट, मतलब कितना हाइट के आप उसमें प्लेस कर रहे हो, वो अगर आपको पता है, देन यू कैन कैलकुलेट द लाइक नंबर ऑफ स्कर्ट, मतलब कितना स्कर्टिंग के लिए टाइल टाइल का क्वांटिटी लग रहा है, वो भी आप उसमें निकाल सकते हो। ओके। सो यहाँ पे अभी मैंने फ्लोरिंग टाइप दे दिया, एंड लेट्स से असाइनिंग द फिनिश टू फाइस। सो यहाँ पे मैंने सपोज 2 ही लेयर असाइन किए हैं, एंड लेट्स से ओके, अप्लाई, ओके, फिनिश। सो अगर यहाँ पे आप इसको 3D व्यू में जाके देखोगे, सो फ्लोरिंग टाइल, लेट मी टर्न ऑन इनटू द रियलिस्टिक मोड, सो वो आपको प्रॉपरली दिखेगा टेक्सचर पैटर्न। सो सी, दिख रहा है? Yeah, yeah. यस। सो ये प्रॉपरली, आप अभी इसमें ये रूम का साइज, अब इसमें मुझे नंबर ऑफ निकालने हैं, टाइल्स निकालने हैं। तो सिंपल है कि आपको इसका पहले तो डायमेंशन पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर रूम का। सो ये कितना रहेगा, लेट्स एज्यूम द वॉल फेस टू फेस इन टू इन, 5.8 है एंड 6.8 है। सो इसका एरिया कितना आएगा, सो मल्टीप्लाई करोगे आपको उसका एरिया मिलेगा, डिवाइड बाय सिंगल टाइल का एरिया। सो इट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रूम। सो लेट्स से कि अभी ये, इसको आप मैनुअली भी कैलकुलेट करोगे तो भी होगा, या फिर हम लोग जो रेविट में बाय फॉर्मुलेशन जो कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें भी ऑटोमेटिकली उतना नंबर ऑफ काउंट आपको मिल जाएगा। ओनली द थिंग इज, आपको मेंशन, जब आप फॉर्मुलेशन मेंशन करते हो वहां पे, उसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका यूनिट किस में है। नहीं तो अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो, हेलो, मेरा आवाज ब्रेक हो गया क्या? ये बीच आवाज में ब्रेक हो रहा है हैंग हो आपका। जाता है but आई डोंट नो, सम इशू विथ वाईफाई आई थिंक। ओके, नाउ इट्स फाइन। Yeah, yeah, Rahul, you can continue. ओके, यस। सो सॉरी, अभी यहाँ पे जो आपको सिर्फ फॉर्मुलेशन में देना है, बिकॉज एरिया जो रेविट में होता है उसका बाय डिफॉल्ट मीटर स्क्वायर में रहेगा। सो आपको जो सिंगल टाइल का आप एरिया दोगे ना, वो भी आपको मीटर स्क्वायर में देना पड़ेगा, नहीं तो आप, मुझे मैंने बोला था कि 2x2 का मेरा स्लाइड है, सो 2x2 आप कितना करोगे, 4। सो 4 स्क्वायर फीट में दोगे तो वो आपको डेफिनेटली गलत रिजल्ट बताएगा। सो मेक श्योर कि जो यूनिट आपका एरिया का है, वो सेम यूनिट आपका जो आप वैल्यू इनपुट दे रहे हो वो उसका भी होना चाहिए, तभी वो एग्जैक्ट काउंट आपको मैच करके मिलेगा। ठीक है। सो हम लोग देखेंगे वो कि कैसे करते हैं कैलकुलेशन, इवन नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो वहाँ पे जितने लेयर्स, उसमें कितना सीमेंट्स लग रहा है, कितना सैंड लग रहा है, वो सारे हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे एक सेशन में कि कैसे हम लोग उसको करते हैं, कहाँ से बीओक्यू एक्सट्रैक्शन होता है, देन जो एक्सट्रैक्शन आप कर रहे हो उसको एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। सो वो सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट।
ओके सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका टाइल्स। ओके सिमिलरली बाकी के अगर कुछ मटेरियल्स मुझे क्रिएट करने हैं, ओके ये मैंने आपको एक सैंपल बताया कि टाइल्स का, लेट्स से कि आपको पेंट करना है। सो अगेन अगर आप यहाँ पे जाओगे मटेरियल्स में, तो अगेन क्रिएट अ न्यू मटेरियल, सो डिफाइन लेट्स से कि इंटरनल पेंट है मेरा ये, इंटरनल पेंट। ओके देन यहाँ पे आपको एक क्लास का ऑप्शन है। ओके ये मैं आपको भूल गया था बताना, बिकॉज ये क्या करता है कि यहाँ पे देखो ये फिल्टर है ना, तो आप पेंट को पेंट की कैटेगरी में डाल सकते हो। सो ये जो क्लास है इसको मुझे पेंट की कैटेगरी में डालना है। सो यहाँ पे मैं पेंट देखता हूँ, सो लेट से पेंट। ओके और यहाँ पे मैं भी इसको क्रिएट करूंगा। सो अपेयरनेस रिप्लेस दिस असेट, देन पेंट। ओके पेंट में जाने के बाद यहाँ पे देखो ग्लॉसी है, मेटल फ्लैक है, मेटालिक है, पाउडर कोट रफ। ओके ये सारे टाइप्स है। अभी लाइक दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड इन RFP और RFI। सो RFP मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, और RFI क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके सो ये सारे आपको जब आपके पास होंगे अंडर द बीईपी, जो भी एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर होता है, तो वहाँ पे हर एक इसके लिए आपको मेंशन किया जाता है कि वॉल का ए लेयर है तो उसमें लेयर 1 का मटेरियल क्या यूज करना है, लेयर 2 का मटेरियल क्या यूज करना है। लेट्स से मेरे पास पेंट है, तो पेंट का किस टाइप का आप पेंट यूज करोगे, उसमें भी आपको कौन सा कलर देना है, टाइप देना है। सो कलर एंड एवरीथिंग यू कैन मैन्युअली डिफाइन, बिकॉज वो तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, बट द टाइप इज इंपॉर्टेंट। ओके सो ये जहाँ पे आपको जितने ऑप्शन दिख रहे हैं, ग्लॉसी, मेटल फ्लेक, मेटालिक, पाउडर कोट रफ एंड कोट बाय स्मूथ, ओके ये सारे टाइप्स है। सो मुझे अगर देना है कि ग्लॉसी में से जो टाइप देना है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सारे शाइनिंग या फिर ग्लॉसीनेस में आते हैं पेंट। ओके अगर पाउडर कोट मतलब जो वो एक बैग में आता है ना वो पाउडर, फिर वो हम लोग डिजोल्व करते हैं एक रिक्वायर्ड मटेरियल में, देन वो स्टर करके जो अप्लाई होता है वो होता है पाउडर कोट। ओके उसमें भी दो आते हैं, पाउडर कोट रफ आता है, पाउडर कोट स्मूथ आता है। ओके सो लेट्स से अगर मैं पाउडर कोट में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको पाउडर कोट मिलेगा, ये इतने सारे ऑप्शंस। ओके मेटालिक में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मेटालिक पेंट मिलेगा, और मेटल फ्लैग में ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। सो ओके ये वाले आपके नॉर्मल पेंट्स। अभी मैं दे रहा हूँ कौन सा, इंटरनल वॉल। सो अगर वॉल पेंट में आप जाते हो, सो अगेन यू विल हैव टू ऑप्शंस। ओके इसको समझ लो कि ये वाला जो पेंट है, ये सारे पेंट्स हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, जो अदर आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे वहां पे। ओके एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली वॉल पेंट के लिए भी ऑप्शंस आपको दिए हैं, ग्लॉसी एंड मैट। ओके ये जो मैट फिनिशिंग हम लोग बोलते हैं वो इसके इसमें इनलिस्ट के रहेंगे, देखो ये वाला। ओके सो ये सारे आपके वॉल टाइप्स के इतने सारे पेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ग्लॉसीनेस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो लेट्स से कि मुझे साइन कलर है, सो साइन कलर इसमें यूज करना है। ओके सो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, लेट्स से इंपोर्टेड। ओके देन उसका फिनिश क्या रखना है, ओके ग्लॉस फिनिश रखना है, सेमी ग्लॉस रखना है, पर्ल, प्लैटिनियम। ओके सारे टाइप्स है, सो आप जो भी रखते हो। एंड एप्लीकेशन मतलब नॉर्मल जो पेंट होते हैं जो ट्रेडिशनल या फिर ओल्डर, इसमें हम लोग ब्रश से पेंटिंग करते थे, उसके बाद वो रोलर आ गए। ओके यहाँ पे देखो स्प्रे होता है, रोलर है या ब्रश है। ओके अभी जो लेटेस्ट यूज करते हो आइदर रोलर रहेगा या फिर स्प्रे रहता है। स्प्रे लाइक कॉस्टली रहता है, बट इसमें जब आप इमेज रेंडर करोगे ना, तो इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा, बिकॉज नॉर्मल इसमें तो कोई मतलब कलर कलर ही दिखता है, बट उसका जो ग्लॉसीनेस या फिर शेडिंग पैटर्न है ना, वो एप्लीकेशन में जब आप इसको फुल रेंडर करते हो उस पर्टिकुलर इमेज को, तो बाद में पता चलता है कि ओके स्प्रे में लाइक स्मॉल स्मॉल डॉट डॉट स्प्रिंकल पार्ट आपको दिखाई दिखाई देंगे। ब्रश अगर कर रहे हो तो ब्रश में आपको एक वर्टिकल पैटर्न दिखाई देता है एक पूरा आप अप्लाई करने के बाद। एंड अगर रोलर कर रहे हो तो लाइक स्मूथ वन जो आपका दिखता है। सो लेट्स से सफिशिएंट अगर मुझे रोलर पैटर्न है तो मैं सिंपली इसको रोलर में डिफाइन करूंगा, एंड यहाँ पे आपको वॉल पैटर्न ऑलरेडी वॉल के ऊपर अप्लाइड है। ओके देन इसको अप्लाई करो, ओके करो। ओके अभी डायरेक्टली यहाँ पे दो वेज है वॉल को पेंट अप्लाई करने के। यहाँ पे आप डायरेक्टली लेयर में से अप्लाई करोगे तो आप उसका क्वांटिटी निकाल सकते हो। अगर आपको वॉल का क्वांटिटी मतलब पेंट का क्वांटिटी दिखाना ही नहीं है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन अगर आप ये कर रहे हो,
सो सिंपली मॉडिफाई में चले जाओ, जस्ट गो टू द पेंट ऑप्शन एंड सी यहाँ पे हम लोगों ने एक पेंट किया है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ पे देखो पेंट अप्लाई हो जाएगा। देन इस वाले वॉल फेस पे आएगा, इस वाले वॉल फेस पे आएगा। सो यहाँ पे देखो आपका पूरा पेंट का टेक्सचर। अभी इसका मैं सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ, बट इसका कैलकुलेशन कहीं पे भी नहीं है। अगर मैं इसके लेयर में जाके देखूंगा तो मुझे एक ही लेयर दिखेगा, बिकॉज मैंने इसको पेंट को लेयर में कंसिडर किया ही नहीं है। ओके, सो अगर आपको इसको जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन प्लेस करना है, सो आप डायरेक्टली ऐसे प्लेस उसको मटेरियल डिफाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ पेंट हो सकता है, कोई भी मटेरियल आपका रहेगा वो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लेट से ग्लास है या फिर ये वाला फ्लोरिंग पैटर्न है, सिंपली अगर मैं इसमें प्लेस करूंगा, सी फ्लोरिंग पैटर्न यहाँ पे आ गया। ओके, so this is how we can create a materials as per your standard, जो भी आपको उसमें बनाना है। ठीक है, क्लियर? इसमें किसी को कुछ डाउट है मटेरियल क्रिएशन में? आई थिंक क्लियर लग रहा है। क्लियर फॉर एवरीवन? सूरज, पल्लवी? Yes, sir. गुड, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आर्किटेक्चर शीट डिटेलिंग। सो अभी यहाँ पे देखो मैं एक सैंपल प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, बिकॉज मुझे आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा मैं शीट्स कैसे बनते हैं, बिकॉज आपको जब वो मैंने एक स्मॉल आपको प्रोजेक्ट दिया था, वो आपका डिटेल में मॉडलिंग होने के बाद। Rahul, um, हाँ, when we have windows, doors, detailing in a sense like if we apply paint on doors and windows, so that we have to identify separately. And the same procedure we have to follow, na? Like the kind of यस selection of paint and यस यस यस, सेम प्रोसेस। क्लियर मैम? yeah. ओके, सो यहाँ पे अभी एक सैंपल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे देखो आपको एक टाइटल शीट मिल रहा होगा, उसमें एक 3D व्यू दिया है कंप्लीट प्रोजेक्ट का। यहाँ पे कुछ स्केड्यूल आपको दिखाई दे रहा होगा। देन यहाँ पे कुछ सब इमेजेस है इंटीरियर के, जो देखो मैंने ऐसे कुछ आपको एक उस दिन एक रेंडर व्यू करके दिखाया था। देखो सीलिंग हम लोगों ने प्लेस किया था, देन ऐसे लाइट कुछ प्लेस किए थे। सो अभी यहाँ पे देखो सेम काइंड ऑफ थिंग इन लोगों ने व्यू यहाँ पे क्रिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा, एंड उसको रेंडर करके शीट पे ऐड किया हुआ है। ये भी आपका रेंडर व्यू है। सो अभी हमको भी ऐसा कुछ शीट बनाना है। अभी यहाँ पे तो आपको डिटेल शीट नहीं मिल रहा होगा, बिकॉज ये तो ओवरव्यू हो गया या फिर जस्ट 3D व्यू हो गए। बट इसका फ्लोर प्लान कहाँ पे है, सेक्शन कहाँ पे है, एलिवेशन कहाँ पे? ओके, सो यहाँ पे देखो ये आपका होता है डिटेल में प्रोजेक्ट ब्राउजर। सो कभी भी कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट में ऊपर काम कर रहे हो, सो फ्लोर प्लान आपके डिटेल में होने चाहिए। देन 3D व्यूज आप जितने क्रिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू कैमरा रेंडर, वो सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। एलिवेशन आपको सबको पता है। यहाँ तक आपका एक रेगुलर वर्क फ्लो है। उसके बाद अगर मुझे सेक्शन क्रिएट करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे एक सेक्शन लाइन है, वो अगर मैं प्लेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेक्शन क्रिएट हो जाता है। आपको ऑटोकैड जैसे सेक्शन वहाँ पे बनाते मतलब ओके यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैसा होगा विजुअलाइज करना है, वैसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली लाइन आपको जैसा सेक्शन चाहिए वैसे आप लाइन ड्रॉ करो, ऑटोमेटिकली सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो आपको सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे सेक्शन को इन लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है। वॉल सेक्शंस अलग लिए हैं टिपिकल वॉल पैटर्न देखने के लिए, एंड बिल्डिंग के सेक्शन। ओके, सो बिल्डिंग सेक्शन में मैं अगर जाता हूँ तो ये देखो बिल्डिंग, अगर मैं अब ये कौन सा सेक्शन है, बिल्डिंग सेक्शन है। सो बिल्डिंग सेक्शन मुझे कहाँ पे दिख रहा होगा कि A104 थर्ड टाइप का है। सो अगर मैं कोई भी फ्लोर प्लान में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहा होगा कि देखो अगर मैं बिल्डिंग ऐसे कट करूंगा इस पर्टिकुलर वे से, 3104 था शायद वो, 3104 थिंक हियर समवेयर। ओके, सो यहाँ पे आपको ऐसे कट करना है। तो जैसे आप इसको कट करोगे ना इस पर्टिकुलर वे में, तो ये आपका बिल्डिंग या ऐसा कट करने के बाद कैसा दिखेगा, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेट्स से यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ,
ये वाला सेक्शन आपको गया। ओके, बिल्डिंग सेक्शन में अगर जाना है, सो आई अगेन गो टू दिस वन। यहाँ पे देखो ये वाला सेक्शन है वो A104। सो लेट से मुझे ये वाला देखना है। अगर मैं ऐसे कट करता हूँ बिल्डिंग इतने पार्ट के लिए, सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करो, आपको दिख जाएगा बिल्डिंग सेक्शन। ओके, स्पेसिफिकली स्टेयर का देखना है तो स्टेयर का भी क्रिएट किया हुआ रहेगा। सो यहाँ पे स्टेयर का सेक्शन। ओके, सो सेक्शन आप जनरेट कर सकते हो। लेट से अगर मुझे न्यू सेक्शन बनाना है यहाँ पे, लाइक कैसे बनाऊंगा मैं, मुझे पास करना है लेट से कि ये स्टेयर में से सिर्फ यहाँ से लेके ऐसे हॉरिजॉन्टल वन। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा व्यू में। व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सेक्शन। सेक्शन के ऊपर क्लिक करो, देन प्लेस करना है मुझे यहाँ पे। सो मैं क्या करूँगा, लेट से प्लेस दिस लाइक दिस, बिकॉज WC में से वो भी जाना चाहिए। सो मैं ऐसे एक लाइन प्लेस करता हूँ। अब ये तो मेरा स्ट्रेट हो गया। कि प्लेस करने के बाद आपको किस तरफ देखना है। सो अगर मैं यहाँ पे लाइन क्लिक करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा न्यू सेक्शन है। मैं इस साइड पे देख रहा हूँ, यहाँ पे इसका जहाँ पे आपका एरो इंडिकेट हो रहा है उस तरफ आपका सेक्शन में डिटेल आ जाएंगे। और यहाँ पे एरिया है, कितना एरिया आपको देखना है। लेट्स से अगर मैं इस बॉक्स को, बाउंडिंग बॉक्स को अगर छोटा करता हूँ, लेट्स से हियर समवेयर, तो जितना वो बॉक्स है उतना ही आपको एरिया दिखेगा। बट अगर मुझे कंप्लीट देखना है अप टू द दिस पर्टिकुलर एरिया, मतलब वॉल के आउटसाइड भी, तो मैं यहाँ पे इसको इतने एरिया तक उसको एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, देन यहाँ पे तो मैंने ये लाइन प्लेस कर दिया। ओके, सेक्शन लाइन है। अब यहाँ पे पास हो रहा है कहाँ पे, WC में से पास हो रहा है स्लाइटली। बट अभी मुझे यहाँ पे भी इसको मतलब अपेंड करना है अप टू स्टेयरकेस, ऐसे एल शेप में। सो यहाँ पे आपको स्प्लिट सेगमेंट का ऑप्शन है, सिंपली इसको चूज करो एंड यहाँ पे ब्रेक करके इसको ऐसे स्टेयरकेस में लेके आओ। सो अगर आप इसको देखोगे, ये वाला सेक्शन था मेरा। सो ये ऐसे पास हो रहा है, देन अगेन यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है। सो मतलब स्टेयरकेस का भी पार्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। एंड यहाँ पे मेरा संग स्लैब कितना है वो भी मुझे कहीं पे दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ पे मेरा WCN बात है। ओके, सो अगर मुझे इसमें जाना है, देन आई सिंपली डबल क्लिक। यहाँ पे देखो सेक्शन 1 के नाम से न्यू सेक्शन मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया हुआ, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। सो यहाँ पे देखो आपका ये WC का था सेक्शन जो यहाँ पे पास हो रहा है फर्स्ट, एंड देन हियर समवेयर यहाँ पे मेरा स्टेयरकेस का सेक्शन दिख रहा है। ओके, अगर मुझे इसको चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिएंटेशन, सिंपली इसको फ्लिप करो, सिलेक्ट द लाइन, फ्लिप द सेक्शन अभी टुवर्ड्स दिस साइड, मतलब यहाँ पे मैं इस साइड पे मैं देख सकता हूँ। देन अगर मैं सेक्शन 1 पे जाता हूँ तो देखो पूरा एंगल चेंज हो गया। ठीक है, सो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, लाइक सेक्शनिंग, देन डिटेलिंग के ऑप्शंस आपको ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चीजें आपको व्यू पैनल में मिलेंगे। कॉल आउट व्यूज आप क्रिएट कर सकते हो, सेक्शंस आप बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट द प्लान व्यूज अकॉर्डिंग टू योर 2D लेआउट, देन योर सीलिंग प्लान, योर एरिया प्लान, वट एवर इट इज। सो जितने भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पे है रिलेटेड टू द 2D डिटेलिंग पार्ट, वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन अभी आपके पास फ्लोर प्लान है, देन आपके पास सेक्शंस आपने क्रिएट किए हुए हैं, आपके पास एलिवेशन है। अभी इन सबको मुझे एक शीट में लेट से कि यूज करना है। ओके, सो शीट में यूज करने के लिए आपके पास एक शीट्स भी होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट अगर आपको शीट यूज करना है, यहाँ पे अभी देखो आपको बाय डिफॉल्ट शीट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ओके, बट अगर आप व्यू पैनल में जाते हो तो यहाँ पे एक शीट का ऑप्शन है। अभी हम लोग न्यू शीट बनाएंगे और उसमें ये सारे व्यूज ऐड करेंगे। यहाँ पे टाइटल शीट है, साइट प्लान शीट है, प्लान्स का शीट है, एलिवेशन सेक्शन का अलग से शीट है। सो मल्टीपल शीट्स यहाँ पे आपको दिखाई रहे मतलब दिख रहे हैं। सो अगर आपको एक ही शीट में 4-5 व्यू डाल के उसको एक कंबाइन शीट बनाना है या फिर सेपरेट सेपरेट डिपेंड करना है, अप टू यू। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे अभी न्यू शीट्स क्रिएट करते हैं और उसमें लेट से कि एक फ्लोर प्लान लेंगे, एक सेक्शन लेंगे, एक एलिवेशन लेंगे ओवरऑल बिल्डिंग का, और एक 3D व्यू सपोज ऐड करेंगे। सो ये 4 व्यू मुझे उस पर्टिकुलर शीट के ऊपर
लेके आना है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा, शीट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कौन सा शीट चाहिए। ओके, उसमें टाइप्स होते हैं A0 दैट इज द लार्जेस्ट वन, A1 होता है, A2 A3 एंड नॉर्मल हमारा जो प्रिंट हम लोग लेते हैं ना नॉर्मल, सो वो आपका A4 होता है। ठीक है, सो आपको कौन से इसमें वो प्रॉपरली इंपोर्ट करने हैं सारे व्यूज। सो लेट्स से मैं यहाँ पे, अभी मेरे पास तो यहाँ पे एक्टिव A1 ही दिख रहा है मुझे, बट मुझे अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और देखना है। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा बैक टू योर लाइब्रेरी कंटेंट। ओके, देन गो टू दिस Autodesk Revit 2022 and यहाँ पे, so here you will find I think template English. Oh no, it's here. Then search for it. Library, family libraries, title block somewhere you will find. So title blocks, yes. So under the title block you will find the A0, A1, A2, A3, A4. Okay, let's say I want A0, the largest one. So I'll simply click and open. यहाँ पे आपको A0 मिल गया, then click OK. So here you can see the unnamed sheet has been appended under this. ओके, सो इसको मैं चेंज करता हूँ। सो अभी ये शीट्स बनाने के लिए दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ओके, हियर यू विल सी द ऑटोडेस्क लोगो, सम कंटेंट। ओके, बट दिस that particular template you can customize. Let's say आपको यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो देना है, here you can place a website, some other details. Okay, then the description of the each and every element which you have appended on the sheets. Okay, then who is the project number, date, who is the concerned person who has drawn the particular model, who is a checker, scaling, everything. Okay, everything is editable. Okay, so here you need to put the information. So let's say sheet name, uh, let's say sample model if I'm creating. Sample sheet. So let's say sample sheet. Then here you need to put this sheet number because might be you're creating the multiple sheets. So you must know like which type, which number of sheet you are creating for which drawing you are creating, so that you can put it here somewhere. And the issue date. Okay, so date is also important, that you can put it somewhere here. Okay, then who is it drawn by, the design by. Okay, that this information you can add. And so here drawn by the author. So author means if you put the name over here, that name will reflect. Let's say here uh Vishwesh, if I'm adding. Okay, Wish, so you can see it's automatically reflecting. So let's say check by XYZ. So those data will be automatically created. Now after importing this sheet, how you can import the views. Okay, अभी यहाँ पे जो views है, so यहाँ पे हम लोग one by जाते, setting up sheets. Okay, so setting up sheet means like we have first identify the sheets. Okay, which type of sheets you want. Let's say A0, A1, A2, what which are the types. Then setting up the sheet means you need to customize according to your standard. Okay, this particular required information. So here into this properties panel you can edit that information. Okay, you want to edit more about these logos and everything, so then you need to click on the sheet and edit the family, because this sheet has created under the family member, or the this sheet has a particular its own family. So if I go to the edit family, then now I'm able to remove the logo itself. So let's say I'm removing the logo, and let's say I want to add my own logo, suppose here. So simply insert and import the image. So let's say I don't have any image right now, but I will, let's see if I found anything. Let's say I want to use this particular logo. So I'll simply place it here. Okay, and then I will draw like this. This is a customize. Okay, now you can edit your website as well. Let's say I want a proper face to face, that you can define like this. Okay, now I'm not able to adjust the
this particular thing. So for that, you need to go here. Okay, there is an option you will find manage image. No, not this one. So lock proposition, because I'm able to operate only from the four corners, but I want to control the entire image. Then just again select, and now you can able to crop it like this along with the width or along with the height. Okay, lock proposition means it will adjust automatically. If you're adjusting the length, it will automatically adjust the width as well. Now, if you want to edit this, just simply click edit it. Okay, whatever you want. And again, this information, if you want to remove or if you want to add something, that you can do this entire changes after uh, changing all the details. Simply load into the project and close. Okay, so which are the changes you are doing in the particular sheet, that will be imported into your project, because currently you are editing the family. Okay, so there are two options. So loading into the project means it will load only into the project. Okay, it will not save into the default library or the default family. But if you say load into project and close, so it means it will load into the project as well as close that family by saving the your latest detail basically. So which are the changes you are doing, that will be uh, available into that native family. So the or the original family. Okay, so let's say I want to load into the project and close. So simply say, do you want to save? So you say yes. Now it will ask you the unable to write is read. Okay, so this is only a read only file. So I think I have selected. So no problem. I will load into the project. Okay, just override it. Override means whichever the existing changes, that will override the with new changes. So I'll simply click, and now you can see the logo has been updated, and even this website is also removed. Now how to place the views? Okay, so for placing the views, you need to understand which views you want. Let's say I want a level 1 view. So first open the level 1 view. Okay, this is level 1. So in level 1, these all of the things are available. So whether I want all the information on my sheet. If yes, then simply select the sheet. Okay, simply select the sheet. Go to the floor plan 1. Okay, drag it and drop it. Now the view is already okay. It is already placed. The okay, no problem. I will create a duplicate view and then I will place, because it's showing already the here you will find the sample sheets, and already these views are placed. Okay, so it is showing me error. You cannot place the same view on the different sheet. So now I'll go to this level 1 and I'll place this view on the sheet. Now here you need to adjust the scale. So let's say I want to set a scale for this particular floor plan is 1 is to 50 or 1 is to 100, whatever it is. So here you have a right to change the scale. So if I'm selecting this particular view, so view scale for this particular floor plan is currently 1 is to 100. Let's say what happen if I change 1 is to 50. See, it will enlarge the image, because now I have changed the scale as 1 is to 50. Now the dimensions and everything is not it will not change basically. It will change the overall size of the scale. Okay, let's again I'll make a 1 is to 100. I think it is sufficient. So here you need to adjust, and here you can put the proper name of the particular level, floor plan level 1 with the detail and everything. Okay, then I need to import a level 2 also. So again I will, sorry, I need to create again duplicate because this is already available. Again I'll go to the sheet level 2, drag and drop. So let's say this one. This is my level 2 view. So which is having the proper detailing, room information, the tagging,
room area, everything they have mentioned properly, and the room legend. So with this color, these are the room legends basically. So where we need to understand the color combination. So if you have if you people have seen this browser ना, वो बिल्डर लोगों के पास रहता है ना, वो जहाँ पे आपको फ्लोर प्लान का कट सेक्शन दिखाई देता है, या फिर रूम के कलर में फर्नीचर प्लेस के साथ जो प्लान बनता है, सो काइंड ऑफ थिंग वो प्लान हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेसिकली, जैसे आपको चाहिए वैसे. ओके, देन आई नीड सपोज एनी 3D व्यू. सो लेट्स से मैं जो डिफॉल्ट है उसको ही मैं लेता हूँ. तो यहाँ पे डिफॉल्ट 3D व्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एंड आई नीड टू प्लेस हियर समवेयर. यहाँ पे आपको पूरे इसका आ गया इंटर मॉडल का. सो ये नहीं चाहिए मुझे इंटर मॉडल का. सो आई नीड स्पेसिफिकली फॉर द पर्टिकुलर बिल्डिंग. सो यहाँ पे आपको वो मिलेंगे कि सिलेक्ट स्पेसिफिकली लिविंग रूम का क्रिएट किया हुआ है, किचन का है, बट सिर्फ बिल्डिंग का नहीं है. सो हम लोग एक बिल्डिंग का क्रिएट करेंगे हमारे हिसाब से. सो लेट्स गो टू द लेवल 1, लेवल कॉपी 1, गो टू द कैमरा, एंड हियर आई विल प्लेस द न्यू. सो किस एंगल से मुझे देखना है, लेट्स सी यहाँ पे फ्रॉम हियर समवेयर. Okay, like this. ऐसे आपको but I need to change the level of camera placement. So I'll go here, I'll choose the view, and here I will change the eye elevation. So from 1570 to I will select 2570. Okay, then what will happen? It will change the view angle. See? Okay. Then I'll again go to my level 2, and from level 2 I will capture. It's kind of a bird eye view. I'll again go here. Okay, let me turn on the cropping view. So they have cropped. Okay, I need something like this. This is better, I guess. It is visible or not? Yeah, perfect. Let's I'll turn it like this. So I need this image, suppose, on my view. Then you can adjust it. So how much you need? You can crop it like this. Let's say this much only, and then give zoom to fit. So it will appear. Now this image I want as a 3D view too. So I'll just set as a fine and shaded mode. Yes. Again, go to the level, your sample sheet. Now you can import it. So 3D view 2 you want, right? So drag and drop. It will be showing you. Now here the scale will not show you because 3D view I'm creating without scale. I don't have any option to set a scale. So that you can click and manage it with respect to the section box, or with respect to the that image size. So means cropping the this particular thing. So if you enlarge this, automatically that view also will enlarge in sheet. Okay. So suppose only we want building, so we have to have a separate layer because already we create this landscaping and so and so. So we have to create a separate view of that, and then only we should import, right? Yes, that also you can do. Like, but whenever you're placing any camera or angle, camera angle, na, so you have a rights to control how much area you want into the particular camera. So let's say here But I'm cropping something. camera like little small patches of green space, and that will also come, na? Yes, right. But you can adjust. Okay. So now if you go to the level on sheet again, so here you can automatically adjust the view. Okay. And like this, you need to create a sheet. So if you want to add some like schedules and everything, that also you can easily create. Let's say schedule. So here I have a planting schedule. How many plants I have provided on this particular for this particular landscaping basically. So if I import this, so see
this many. This is a type of the plant. So honey locust, it's 8 number of plants I have planted. Then hawthorn, it's 1. A large tooth aspen is 1. A red maple is 2. Then these are the different types. Okay, so it's similar to like your doors and window. So if you have a doors window schedule and if you want to add on on your sheet, so similar to which I have given to you. वो जो मैंने आपको एक प्लान दिया था ना, जो आप बना रहे हो सभी अभी बंगलों का, so उसमें अगर आपने देखा रहेगा तो उसमें डोर्स और विंडो का शेड्यूल है. सो आपको सेम शेड्यूल अगर यहाँ पे प्रिपेयर करना है, एंड दैट आल्सो यू नीड टू पुट इनटू द सेम शीट. सो वो कैसे बनाते हैं, लाइक व्हेन वी विल डिस्कस द शेड्यूलिंग एंड शेड्यूल एक्सट्रैक्शन पार्ट. सो उसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर द डोर्स, विंडोज और द वॉल एंड क्वांटिटी टेक ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. Can So we put a Word file or Excel file for your detailing and whatever the you cannot information? import anything inside the Revit, but you can export from the Revit. मतलब यहाँ पे अच्छा, अभी यहाँ पे देखो कि ये स्केड्यूल है, इसको यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ प्लांटिंग एंड स्केड्यूल में, सो ऐसे कुछ आपको दिख रहा होगा. बट अगर इसको मुझे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, सो मैं इसको एक्सेल में लेके जा सकता हूँ डायरेक्टली. सो यहाँ okay, पे but आपको you एक cannot ऑप्शन, import नो नो, from there. import you cannot import. Okay. Yeah. So for sample sheet, if you see here site plan or the plan, so let's say I will be going on the plans, so level floor 1. So this will be under the sheet. They have directly link. They have not created any sheet. They directly link this plan into the sheet panel. So if I want to explore the all the sheets, I'll simply go onto the plans and I'll be directly uh, I can see directly the floor plan level, which has the link from the your floor plan panel. Okay. Then for elevation also you will find the directly elevation on south. So basically, let's say these two elevations I want to highlight for this particular project or for this particular sheets, then I will directly link this. Similarly for the elevation section, so detail layout of the floor wall connection, then foundation detail. So everything they have made. So see, this is the detailing. Building So like section. all this sheet we have to create separately or it automatically gets created? Oh no, view is automatically created, but you need to make into the sheets. Like मतलब आपको drag and drop करके वो sheet बनाना पड़ेगा. यहाँ पे इन लोगों ने they have not created sheet. They have just linked the view. अगर आप see if I'm going on the this particular elevation ना, So so how this this elevation is information will come? Suppose I created some 2-3 sheets. हाँ. So how will that come? So whichever the new sheets you are creating, that will be visible over here. Let's Acha, say it we will be visible. Okay, okay. yes. So यहाँ पे हम लोगों ने हाँ, sample बनाया था ना. So if you go here, see हाँ, whichever the things we हाँ, have हाँ. added, it's automatically coming over here. Okay, okay. Understood. Yeah. So this is about your uh, placing and modifying the views on the sheet. Okay. Now creating the details and annotating the construction documents. Okay. So annotating means how you can annotate. So for annotation, you have a multiple options. So if you go to the modify or the into the view panel, sorry, annotation panel. So here you will have the option like detail line, then place the dimensions. Okay. Then place the spot elevations coordinate of the particular point. Then if you have if you want to add some text over there, you can add the text. If you want to highlight some area into the revision cloud, that also you can do. And some tag by material, tag by category. So this, which are the things you have seen in the number or into this no different shapes. These are the basically tagging. So tagging. So this tag is specifically for the window. This 207 is tag is for the door. Okay, so this entire this thing we can say the detailing part. Those we need to detail with respect to the floor plan, elevation and section. मतलब जो जिस particular view में आपको उसको detail करना है, that you need to detail, and जो भी आपका detail किया हुआ view है वही आपको directly sheet में import करना होगा.